Hello everyone, welcome to the new session in the series of previous year papers of LR and DI. I am Ashish and today I am going to discuss one of the sets of data interpretation which has been asked in the earlier MBA entrance exams. Before we move on to the question, let me inform you that we have started a free WhatsApp preparation group to help aspirants. If you want to be a part of this group, first thing you need to do is subscribe to this channel, and after subscribing, fill this form, the link of which is given on your screen. I will also paste the link in the description. Fill this form and you will be added to the relevant groups. Now let's move on to the given set. So this is a complex looking line graph in front of you. On the y-axis you have solubility in kilogram per liter of water, and on the x-axis you have temperature in degree Celsius. So once you understand what is given in the line graph, then it will be easier for you to calculate what is asked in the question. Otherwise it is very complex looking graph because there are multiple lines. So the first line represent potassium chlorate, सबसे नीचे वाली जो लाइन है ये देखिए, सो दैट इज पोटेशियम क्लोरेट. उसके बाद सेकंड वाली लाइन है पोटेशियम क्लोराइड जिसमें स्क्वायर बना हुआ है, सो दिस लाइन एयर इज पोटेशियम क्लोराइड. उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड एंड सो ऑन. सो दीज आर द lines given on the graph. On y-axis you have solubility, on x-axis you have temperature. So let's have a look at the question also. So there are 4 questions on the basis of the given graph. First question is which of the following salts has the greatest solubility. 4 ऑप्शन है आपके पास. Second question, approximately how many kilogram of potassium nitrate can be dissolved in 10 liters of water at 30 degrees Celsius. Third, what percentage is the solubility of potassium chlorate in water increased as the water is heated from 30 to 80. And last question, if 1 mole of potassium chloride gives 0.07456 kilogram, approximately how many moles of potassium chloride can be dissolved in 100 liters of water at 36 degrees Celsius. So first have a look at the graph and try to solve the questions on your own, then come back to the solution. So this is the graph, these are the questions. So pause the video and solve it. तो पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज ग्रेटेस्ट सॉल्युबिलिटी. 4 ऑप्शन आपको दिए गए. पहला है पोटेशियम क्लोरेट एट 80 डिग्री सेल्सियस. पोटेशियम क्लोरेट दैट मीन्स दिस वन, सबसे नीचे वाली जो लाइन है, 80 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू है 0.4. सो सॉल्युबिलिटी हियर इज 0.4. ग्रेटेस्ट बताना है. सेकेंड है पोटेशियम क्लोराइड एट 35 डिग्री सेल्सियस. पोटेशियम क्लोराइड दैट मीन्स दिस लाइन ग्राफ, थर्ड वाला नीचे से. सो 35 पे दैट मीन्स हियर, सो दैट इज समवेयर अराउंड 0.4. ये भी सिमिलर ही है अप्रॉक्सीमेटली. थर्ड है पोटेशियम नाइट्रेट एट 39. पोटेशियम नाइट्रेट इज ट्राइंगल वाला लाइन, दिस वन नीचे से सेकेंड. पोटेशियम नाइट्रेट एट 39 दैट मीन्स समवेयर एयर. तो पोटेशियम नाइट्रेट 40 पे यहाँ पे है, 39 पे भी इसके आसपास ही होगा कहीं. इट मीन्स इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0.4. एग्जैक्टली कितना होगा ये नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है कि 0.4 से ज़्यादा है. दैट मीन्स ए एंड बी कैन नॉट बी द आंसर. सो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए. डी कहता है सोडियम क्लोराइड एट 85 डिग्री सेल्सियस. सोडियम क्लोराइड, ये डैश्ड लाइन जो है, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट ही जा रही है, 0.4 से आगे कभी बढ़ी नहीं है. दैट मीन्स जो भी होगा 0.4 से तो कम ही होगा. सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी द आंसर. हाइएस्ट हैज़ टू बी सी ऑप्शन. तो अगर आप देखें तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी इसकी, हमें सिर्फ इतना पता है कि बाकी सारे ऑप्शन 0.4 या उससे कम है और एक ऑप्शन 0.4 से ज़्यादा है, तो सी विल बी द हाइएस्ट वन. Second question says approximately how many kilogram of potassium nitrate can be dissolved in 10 liters of water at 30 degree Celsius. So potassium nitrate देखते हैं 30 degrees पे. Potassium nitrate mean triangle 30 degree, that means this value. तो यहाँ पे triangle की वैल्यू कितनी है? तो अगर आप देखें तो एक के ऊपर एक, ये तीनों ही हैं यहाँ पे. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 0.4 ही हैं तीनों वैल्यूज, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई इन द ग्राफ कि ये एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है. तो अप्रॉक्सीमेटली इसको मैं 0.4 लेके चलता हूँ.
अब ये है किलोग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 0.4 किलोग्राम। तो 10 लीटर्स में कितना, इफ 1 लीटर इज 0.4 किलोग्राम, so 10 लीटर विल बी 4 किलोग्राम, दैट शुड बी सी ऑप्शन। वैसे भी और कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं। अगर मैं इसको 0.38 भी लेके चलता तो भी 38 आंसर आता, विच इज़ नॉट इवन क्लोज इन एनी ऑप्शन। सो वी कैन सेफली एज्यूम इट टू बी 0.4। थर्ड ऑप्शन, by what percent is the solubility of potassium chlorate in water increased as the water is heated from 30 to 80? तो पोटेशियम क्लोरेट पहले 30 डिग्री पे देखिए, फिर 80 डिग्री पे देखिए, फिर देखिए कितना इंक्रीज हुआ। तो पोटेशियम क्लोरेट दैट मीन्स दिस वन, 30 डिग्री पे ये कितना था, इट वॉज समवेयर अराउंड 0.1, क्योंकि 0 और 0.2 के बीच में 0.1 आएगा, तो उसी के आसपास कहीं है ये 0.1 के आसपास 30 डिग्री पे। इससे थोड़ा ज़्यादा होगा बट अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मान के चलते हैं इसको। उसके बाद है 80 डिग्री पे ये कितना होगा। सो दिस इज़ 80 डिग्री। 80 डिग्री पे ये लाइन कहाँ जा रही है वो देखना पड़ेगा, पोटेशियम क्लोरेट। सो दिस इज़ द लाइन 80 डिग्रीज हियर, दैट मीन्स इट इज़ 0.4। तो 0.1 से 0.4 हो गया है, यानी 4 गुना ये हो गया। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वैल्यू डबल हो जाती है दैट मीन्स 100% इंक्रीज होगा। ट्रिपल हो जाएगी तो 200% इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स हो जाएगी तो 300% इंक्रीज होगा। दैट मीन्स दिस आंसर हैज़ टू बी 300%। डबल इज 100% एंड सो ऑन। So the answer here is D option, 300%. And fourth question says if 1 mole of potassium chloride weighs 0.07456, इसको approximately 0.75 किलोग्राम ले लेते हैं, सॉरी 0.075 किलोग्राम ले लेते हैं। 0.07456 की जगह इसको अप्रॉक्सीमेट कर लिया मैंने 0.075, बाद के डेसिमल पॉइंट हटा दिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कैन बी डिजॉल्व इन 100 लीटर ऑफ वाटर एट 36 डिग्री सेल्सियस। पोटेशियम क्लोराइड देखते हैं 36 पे कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट। तो पोटेशियम क्लोराइड, यस पोटेशियम क्लोराइड एट 36, तो 36 वुड बी समवेयर हियर। तो ये वाली लाइन पे कहीं आएगा। पोटेशियम क्लोराइड इज दिस बॉक्स, तो ये कहीं जाके 0.4 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज हुआ है, तो ये 0.4 के आसपास ही रहेगा 36 डिग्री पे। क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है तो इसको 0.4 लेके चलते हैं। अब आपसे कहा गया कि अगर 100 लीटर में इसको डिसॉल्व कर दें तो हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड, एंड 1 मोल इज 0.075 किलोग्राम, so that is 0.4 किलोग्राम पर लीटर। तो 100 लीटर में कितना हो जाएगा, 40 किलोग्राम, क्योंकि 1 लीटर में है 0.4 किलोग्राम, तो 100 लीटर में 100 टाइम्स हो जाएगा 40 किलोग्राम। अब हमें पता है 0.075 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1/0.075, तो टोटल है हमारा 40 किलोग्राम। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 40/0.075, और हम कह सकते हैं 75 और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 3, 25 इंटू 4 होता है 100, 3 से इसको डिवाइड करें तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 इंटू 4, तो 520 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा आंसर। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करिए मैंने। एग्जाम में अगर कैट का एग्जाम है तो आपके पास कैलकुलेटर भी होता है, बट अदर एग्जाम्स में नहीं होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 520 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं। तो 520 से थोड़ा सा ज़्यादा, 700, 650, 480, 540, सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन बहुत ही क्लोज होते, फॉर एग्जांपल 525 होता, 530 होता, तब हम एग्जैक्ट आंसर निकालते, अदरवाइज दिस टेक्निक विल हेल्प। तो क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट आपको बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशंस करने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ग्राफ को देख के अगर आप सेंस निकाल लेते हैं तो बहुत सारा कैलकुलेशन का टाइम आपका बच जाएगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। विल अगेन मीट इन द next session of this series of previous year papers. If you want to be a part of WhatsApp group, go to the description and submit your details.
And if you have any other query, you can write to me on this email ID. We'll again meet with some new topic. Till then, keep learning.